everyone, welcome to practice session number 20, in which we would be dealing with the concepts regarding simple interest and compound interest. Other than concept, we'd be also talking about the basic types of question and certain expected question as well. Through this, our objective is that you get a hold of this topic. Sure. Let's talk about the important keyword, which is interest. क्या होता है interest? What is this? Suppose Abhishek is one person. He borrows rupees 5,000 from another person. This person's name is Mrinal. Okay. Now let's talk about scenarios. पहले सिनारियो में क्या हो रहा है कि अभिषेक ये 5,000 रुपीज़ जो वापस करेगा मृणाल को, वो आफ्टर 1 ईयर वापस करेगा. सेकेंड सिनारियो, he will return this 5,000 after, let's say, 10 years. And third scenario, he will return this 5,000 rupees on the same day. ठीक है. Now you tell me, in these three different cases, what are the cases in which interest will be applied and how much interest should be applied? क्या यहाँ पे interest apply होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, and if yes, then how much? What should be the deciding factor? And the reason is, why do we charge interest? That is our question. ठीक है. So these are the few pointers that we are looking at. Now, आज जिस चीज़ की वैल्यू 5,000 है, 5,000 रुपये की जो वैल्यू है, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम आफ्टर 10 years? No, right? So if Abhishek's return only 5,000 to Mrinal, Mrinal would be going in loss. So in order to compensate for time value of money, Abhishek necessarily has to pay certain amount of interest. How much? This should be decided between Abhishek and Mrinal mutually. How much should be the interest? Be it 10% per annum, 5% per annum, 20% per annum, or even 50% per annum. This is a mutual decision between these two persons. How much should be the interest? Now, on the same day, is there any time gap? No, you are taking the money from someone and you are returning the same money on the same day. So, is there any time loss? No. तो क्या इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए if they have mutually agreed on this. और रीजन क्या हो सकता है? In this case, मृणाल is a businessman. उसे प्रॉफिट चाहिए. तो इंटरेस्ट इज, इन लेमैन टर्म्स, it is basically the extra money that we pay. That's it. The extra money that you pay is known as interest. The extra money that I receive is basically the interest. And why do we charge interest? बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है. ये डिपेंड करता है. शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अपने फ्रेंड से पैसे बोरो कर रहे हो, आप उसको 1-2 साल 3 साल के बाद दे रहे हो, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है. ही जस्ट रिसीव्स द प्रिंसिपल अमाउंट, द ओरिजिनल अमाउंट. तो इट इज़ ऑलवेज म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन द 2 parties और 3 parties, बिटवीन द इन्वॉल्व पार्टीज. ठीक है. बस व्हाट इज इंटरेस्ट अगर आपसे पूछो मैं, सिंपली द एक्स्ट्रा मनी. एंड व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट देन? And what is compound interest? These are just 2 different methods of calculating this amount. कि how much should be the interest? उसका जो calculation है, I can calculate it on simple interest basis or compound interest basis, which means इन 2 methods को अगर मैं follow करूँ, I would be getting different values of interest. On one of them, I might get a higher return, higher value for same set of data. तो अब ज़रा उसको समझते हैं. बेसिक्स क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट बोलो या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो,
These are just two different ways of calculating interest. That's it. And what is interest? Interest is something extra that we have to pay. Why do we have to pay? These are few reasons why we need to pay. That's it. Now, let's take example of 1000 rupees. Our principal amount, original amount, is pay rate of interest at 10% per annum. Per annum, the interest rate is 10%. Now, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे देखते हैं कैलकुलेशन क्या कहता है. On the basis of simple interest, 10% of 1000 is basically 10 by 100 into 1000. It is 100. 100 rupees is the interest. For compound interest, this is again 100. Now, important factor, simple interest and compound interest for the very first year remains exactly same. Important point. Now, second year. For simple interest calculation, our principal does not change. Principal change ही नहीं करता है. तो क्या होगा? जो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो अगेन इसी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा. सो 10% ऑफ दिस इज अगेन ₹100. तो सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ 100 का. अप टू 2 years, फॉर 2 years, our total interest is 100 plus 100, 200. What is my interest generated in the second year? 100. Okay, in the third year, again it is 100. Clear? So we can say that simple interest remains the same every year. It remains the same every year. It does not change. तो क्या change करता है? When we go on calculating our interest on the basis of compound interest. इसमें after every year or after the first year, the principal changes. The principal becomes principal plus interest, the previous interest. तो इस केस में for the second year, the principal is basically 1000 plus 100, which is 1100. Now we need to calculate 10% of this. 10% of this is simply 110. So our interest changes to 110. Now, if we compare, सेकेंड ईयर के लिए इसको जनरेट होगा 100 रुपये, 100 रुपीज़. बट कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन करा, सेम डेटा, आई एम गेटिंग 110. आई एम गेटिंग 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा. सो इन 2 years, this principal will give me 200 rupees interest on simple interest basis, and on compound interest basis I would be getting 210, a difference of 10 rupees. Now, for the third year, principal becomes P2 plus interest I2. P2 क्या है? Principal 2 is 1100 plus 110. So this becomes 1210, and 10% of this amount, 10% इसका simply 121. तो 121 in the third year. आप देख रहे हो ये progressively increase होते चला जा रहा है. It is keeping on increasing. It remains the same. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आपने कहीं पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो it is a more profitable scenario because it will keep on compounding, and after you keep on increasing the years, it will give you higher yield. Now, यहाँ पे questions किस तरीके से फॉर्म होते हैं? यहाँ पे एक बहुत ही repeated question है, what is the difference between compound interest and simple interest for 2 years and for 3 years? बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है. अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट. अगर 2 years की बात करूं तो ये रहा सिंपल इंटरेस्ट 200, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट 210. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 10 रुपीज़.
हाउ डू आई कैलकुलेट? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला पी आई स्क्वायर. आई क्या है? आई इज नथिंग बट आर बाई 100 और आर परसेंट. आई इज द इंटरेस्ट रेट. आई इज आर परसेंट. परसेंटेज सिंबल हटाओगे तो 100 हो जाएगा. अब ज़रा चेक करते हैं. क्या मैं अगर इस फॉर्मूला पे चलूँ, प्रिंसिपल इज़ 1000, आई इज़ आर बाई 100, आर की वैल्यू है 10, तो 10/100 इंटू 10/100. सिंप्लीफाई करते हैं. एक दो एक दो एक 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 10 रुपीज़ और 10 ही इसका आंसर है. यहाँ से यहाँ तक 200. Here we have 210. The difference is of 10 rupees. Okay. If we do it for 3 years, the formula changes slightly. It is pi square I plus 3. देखते हैं क्या बनेगा ये. It will be 1000 into 10/100. 10/100 is 1/10. 1/10. This is 1/10 plus 3. यहाँ पे आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है. This is 10 and this becomes 30 plus 1, 31/10. So 10 into 31/10, 31 rupees. Now let's check. This is 300. This is 331. इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है? तो 31 रुपीज़ का आ रहा है. वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो या यू हैव द लॉजिकल अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. आई होप ये क्लैरिटी आपको आ गई है कि कैसे करना है. ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप इनको नोट डाउन कर लो. वेयर आई इज इक्वल टू आर परसेंट और आर बाई 100. नाउ basic formulas regarding simple interest and compound interest. Simple interest is PRT by 100 where P is principal, R is rate of interest, T is time period in years. अमाउंट क्या होगा? तो फाइनली जो आपको रिसीव हो रहा है, तो ये पैसे तो आपने इन्वेस्ट करे होंगे और इसके साथ ये इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया, तो इसको ऐड कर दो, ये अमाउंट बन जाएगा. कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पे अमाउंट का एक बेसिक सा फॉर्मूला है. दिस इज P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T. और इस फॉर्मूला को भी आप सक्सेसिव चेंज या नेट चेंज का फॉर्मूला बोल सकते हो. जो वैल्यू है उस पर ही अगेन चेंज हो रहा है. क्लियर है? अब आपने आर बाई 100 को आई से भी रिप्लेस कर सकते हो. आई इज सिंपली आर बाई 100. तो यहाँ पे अगर मैं आर बाई 100 की जगह पे आई लिख दूँ तो आई फील यू आर एबल टू फॉलो इट. एंड टी के जगह पे मैं एन भी लिख सकता हूँ. टी की जगह पे एन लिख सकता हूँ. ये एन क्या है? इफेक्टिव टाइम पीरियड. फॉर एग्जाम्पल ये पर एनम पे तो मुझे चीज़ें क्लियर है, बट अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दे कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उस केस में आर की वैल्यू क्या रखोगे आप? उस केस में आपको ये समझना है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी आर बाई 2. हाफ ईयरली है तो इट इज 6%. टाइम पीरियड क्या है? 1.5. तो देखो एवरी 6 मंथ्स ये कैलकुलेट होगा. तो कितनी बार कैलकुलेट होगा? तो आप बोलोगे ये 3 टाइम्स कैलकुलेट होगा. एवरी 6 मंथ एक बारी, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम. तो इसको करने का तरीका क्या है? 1.5 इंटू 2 विच इज़ 3. तो ये तरीका है. तो इफेक्टिव पे हमें काम करना चाहिए. बहुत बारी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखो आप. ऑल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला वी नो इट इज P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T माइनस P. ये P और ये P यहाँ पे कॉमन है, तो CI इज इक्वल टू P कॉमन 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T माइनस 1. बस ये आप ध्यान रखो बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ सक्सेसिव चेंज ऑफ परसेंटेज. हर जगह आपको यूज़ करना है. जैसे फॉर एग्जांपल इसको, ये फार्मूला का यूज़ कहाँ पे आ सकता है? ध्यान देना. मान लो इट इज सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1 लाख. इट इंक्रीजेज बाई 10% every year. What will be the population of the town after 2 years?
तो T बन जाएगा 2, R बन जाएगा 10 एंड P बन जाएगा 1 लाख। कि 1 साल पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो एक नया प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, एक नया पॉपुलेशन बन गया। उस नए वैल्यू को आप वापस से 10% से इंक्रीज कर रहे हो, और द सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस बाई 10% एंड देन अगेन इंक्रीजेस बाई 10%। तो ये फॉर्मूला नेट चेंज का फॉर्मूला ध्यान देना है। एक और फॉर्मूला मैंने बताया आपको नेट चेंज का, बट ये भी करेक्ट फॉर्मूला है नेट चेंज के लिए। नाउ डबलिंग एंड ट्रिपलिंग इफेक्ट देखते हैं। डबलिंग एंड ट्रिपलिंग इफेक्ट का मतलब है पैसा डबल होना या पैसा ट्रिपल होना, कितना टाइम लग जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक फॉर्मूला है 100/r, वेयर r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम का, तो मुझे कितना टाइम लग रहा है 100/10, 10 ईयर्स। किसी भी पैसे को, वो पैसा फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, इट विल टेक यू 10 ईयर्स टू डबल योर अमाउंट। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पे। द टाइम टेकन हियर विल बी ओनली 72/r, और हमारे इस डेटा के लिए 72/10 विच इज़ 7.2 ईयर्स। देख रहे हो किस में आपको जल्दी रिटर्न मिल रहा है? एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली 7.2 ईयर्स। ओके, फॉर सिंपल इंटरेस्ट इट इज़ 200/r। पैसा ट्रिपल, ये पैसा डबल, ये है ट्रिपल, 200/r। तो टाइम कितना लग जाएगा? 200/10 विच इज़ 20 ईयर्स, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। यहाँ पे वी नीड टू कीप द फॉर्मूला इन टू माइंड, 113/r। तो ये बन जाएगा 113/10, 11.3 ईयर्स। अब ज़रा आप सोचो एक बारी, आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आ रहा है 10% पर एनम का। आप सिंपल इंटरेस्ट वाले कैलकुलेशन में 20 ईयर्स वेट करोगे, तब जाके ये 1 लाख ट्रिपल होगा। मतलब ये 3 गुना बनेगा या 3 lakhs हो जाएगा। बट ये 1 लाख 3 लाख हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा इन ओनली 11.3 ईयर्स इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये मज़ेदार चीज़ है। आप देख रहे हो कितने का फ़र्क आ रहा है। All right, let's do a question. In how many complete years will a sum of rupees 49,72,000 become at least double of itself at 20% per annum compounded annually? Okay, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, पैसा डबल होने की बात हो रही है। तो पैसा डबल कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, आई नो द फॉर्मूला फॉर टाइम, time taken is equal to rule of 72, the rule of compounding. Okay, 72 rate of interest है 20%, 20, so this is 3.6 years। 3.6 years में पैसा आपका डबल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा डबल होना। तो एटलीस्ट डबल, ये दिस इज द बेयर मिनिमम, 3.6 years तो लगेंगे। अब क्या ये करेक्ट आंसर है? क्या ये कंप्लीट ईयर है? नो, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट ईयर। बट क्या पैसा इसके पहले डबल हो जाएगा? नो, पैसा 3.6 ईयर पे ही डबल होगा। देन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इन हाउ मेनी कंप्लीट ईयर्स? द करेक्ट आंसर शुड बी अ कंप्लीट ईयर ग्रेटर देन दिस विच इज़ 4 years, बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस। अगर ये क्वेश्चन होता है इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, द करेक्ट आंसर इज 3.6। इन हाउ मेनी कंप्लीट ईयर्स? एट लीस्ट डबल, 4 years। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। आप देख रहे हो कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपके ध्यान में रहेंगी, जैसे कि ये पैसा डबल होना, ट्रिपल होना, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 years, वी नो सी आई एंड एस आई का डिफरेंस फॉर 2 years इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर।
where I is equal to R by 100 और I is equal to R%. ठीक है, 2 years के लिए गिवन है दिस इज 50 रुपीज़. PI², P क्या है मुझे फाइंड करना है. ओके, R की वैल्यू क्या है 12 1/2 और 12.5%. 12.5 देखो 25% इज 1/4. 25% इज 1/4, तो 12.5% इसका ही हाफ है, तो 1/8 होगा. आप चेक भी कर सकते हो. सो 12.5% इज 1/8, सो I की वैल्यू इज 1/8. Now 1/8 into 1/8. So this is 64 into 50. This is P. 64 को 5 times multiply करा, 5 4 is 20, 6 5 is 32. 3200 is our principal. So अगर मेरा प्रिंसिपल 3200 का है और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% का है, तो अगर मैं 2 साल के बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 50 रुपीज़ का आएगा. चलो मूविंग अहेड. द डिफरेंस बिटवीन CI and SI. CI and SI फॉर 3 years इज गिवन बाय द फॉर्मूला PI², I plus 3. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, I इज इक्वल टू R%. 16.66. देखो 33.33 इज 1/3. ये इसका ही हाफ है, तो 1/3 का हाफ इज 1/6, तो दिस बिकम्स 1/6. नाउ दिस अमाउंट इज 57. प्रिंसिपल आई डोंट नो, इंटू 1/6 इंटू 1/6. 1/6 plus 3. This is 57. This is P into 1/36. और ये 6 3 is 18 plus 1 19/6. क्या 1957 को कट करेगा? यस, 3 times. तो प्रिंसिपल बन गया 36 into 6, तो विच is 6 cube 216. तो 216 into 3. 600, 16 3s are 48. 648 is our principal. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूलाज जो मैंने आपको करवाए हैं उनको ध्यान में रखो आप, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर सकते हो. चलो मूविंग अहेड. अ सम ऑफ 1000 वाज बोरोड एट 10% per annum for 3 years. व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? क्या लिखोगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100. प्रिंसिपल क्या है 1000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 3/100. Let's calculate. So this is 300. आपको करना क्या था? एक शॉर्टकट ये कहता है आई नो सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम एवरी ईयर. हर साल सेम रहेगा. तो कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. कैसे कैलकुलेट करोगे? जस्ट टेक 10% ऑफ दिस अमाउंट. 10% ऑफ 1000 इज बेसिकली 100. ये फर्स्ट ईयर का है. 3 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज 100 into 3 विच इज 300. ठीक है. नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज 300. फॉर 5 ईयर्स इज 500. व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 12 ईयर्स? देखो 5 साल के लिए 500 रुपये बन रहे हैं, 3 साल के लिए 300 रुपये बन रहे हैं. तो अगर मैं 5 साल से 3 साल का डिफरेंस ले लूँ तो मुझे 2 साल का डिफरेंस मिल जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 500 minus 300 विच इज़ 200. आई नो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 200. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 100 रुपीज़. एंड फॉर 12 ईयर्स it should be 100 into 12 which is 1200. So moving ahead, a sum of money gets doubled in 8 years. Find the R%. क्या तरीका? मुझे सिंपल इंटरेस्ट के केसेस पे ये तो पता है कि डबलिंग इफेक्ट क्या कहता है.
डबलिंग इफेक्ट ये कहता है दैट द टाइम टेकन इज 100/r और r शुड बी 100/8 और 100/टाइम। और यहाँ पे टाइम क्या है? 8 years, तो r इज 100/8। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 25/2 विच इज़ 12.5%। अब क्या इसका कोई और तरीका है? ये तो क्लियर है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है डबलिंग इफेक्ट का, सिंपल इंटरेस्ट पे पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये हो जाएगा 72/r। ये पूछा नहीं है यहाँ पे। ओके, ध्यान देना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पैसा डबल हो रहा है? कोई भी पैसा डबल क्यों हो रहा है? पैसा खुद से तो नहीं बढ़ेगा ना, पैसा तो आपके लिए प्रिंसिपल था। ये डबल ट्रिपल क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने डबल होने का मतलब है अब ये 2p बन गया। 2p बनने के लिए इसमें p ऐड करना होगा, और आप जो भी ऐड कर रहे हो वो बेसिकली इंटरेस्ट है, राइट? इसको वापस से समझा रहा हूँ। आपका इनिशियल अमाउंट था प्रिंसिपल, द सम ऑफ मनी गेट्स डबल, ये बन गया 2p, डबल हो गया। क्यों हो गया? आपने इसमें कुछ ऐड करा होगा। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू दैट यू मस्ट हैव एडेड? तो आपने इसमें इंटरेस्ट ऐड करा होगा और आपने इसमें p ऐड करा होगा। तो ये क्या बन रहा है? दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू द फाइनल अमाउंट। ऑलराइट, अब मैं ज़रा अपने बेसिक फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मुझे पैसा डबल कराना है तो मुझे इंटरेस्ट भी एग्जैक्टली प्रिंसिपल के बराबर ही जनरेट करना होगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? इट इज़ p। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p? इट इज़ p। r मुझे नहीं पता, टाइम गिवन है 8 years बाई 100। अब आप कैलकुलेट करो, ये p और p कैंसिल, r इज इक्वल टू 100/8 विच इज़ 12.5%। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। चलो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 years, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मस्ट बी द फाइनल अमाउंट। बोला जा रहा सम ऑफ मनी प्रिंसिपल becomes double of itself, so it becomes 2p. Why? Because you are adding p. Now we know simple interest is equal to p into r into t upon 100. सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे मैं p रख सकता हूँ, r की जगह पे मैं r रखूँगा, t की जगह पे मैं 5 रख रहा हूँ। ओके, तो r इज इक्वल टू 20%। r 20% आ चुका है। अब क्या पूछा रहा है? इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 5 times? In how many years will it become 5 times? Okay, again principal plus interest is equal to amount. Principal is p, it becomes 5 times, so it becomes 5p. तो क्या ऐड करोगे आप? 4p ऐड करोगे। चलो अब इसे ज़रा सॉल्व करो आप। SI इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4p। प्रिंसिपल क्या है? p। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अभी आपने कैलकुलेट करा? 20/100। और t की वैल्यू क्या है? t। ये देखो, ये p और ये p कैंसिल, 20 कैंसिल आउट 5, तो t की वैल्यू 5 इंटू 4 20 ईयर्स। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? इट शुड बी 20। फाइव टाइम्स होगा, इट इज़ 20। और 5 टाइम्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला भी है। फॉर 5 टाइम्स सिंपल इंटरेस्ट के लिए इट इज़ 500/r, तो 500/20। क्लियर है? चलो
देखते हैं। If the simple interest on a certain sum of money is 9/25 of the sum का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल की बात हो रही है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, इंटरेस्ट is equal to 9/25 into P, and the numerical value of percentage annual rate of interest and the time period are same. तो R% is equal to T, the numerical value are same, then the rate of interest is how much? ठीक है, तो SI is equal to P into R into T upon 100. 9/25 into P, this is P into R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर अगर इसे रखते हो तो टी की भी वैल्यू आर ही हो जाएगी अपॉन 100। लेट्स सिंप्लीफाई, दिस पी एंड पी कैंसल्ड आउट, ये 25 4 टाइम्स जाएगा और ये 9 4 ज़ा 36। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, आर इज इक्वल टू √36 और आर इज इक्वल टू 6% पर एनम। With this, I feel you have a rough clarity on how to tackle questions on CI and SI. I hope this helps. Take care, everyone. Happy learning.